Hello dear student, me Ansar Ahmed Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Sant Kabirnagar. My mobile number 9839324130. Today we will study Physics 10th chapter name Electricity. We have studied about Coulomb's Nala, Ohm's law, where we have studied Ohm's law, where electric current is directly proportional to potential difference or potential difference is directly proportional to electric current. You know very well V proportional I, then after removing proportional get a constant. That constant is called Ohm's constant or resistance. V is equal to IR, where R Ohm's constant or resistance. Okay, and I have told you for property, if your potential difference is double, then your electric current also double. If your resistance is half, then your potential difference also. If your resistance is half, then electric current also double, and if your potential difference is double, then electric current also double. But if your potential difference half, then electric current also half, and if your resistance is double, then your electric current also double. Can say I is equal to V upon R. You know, if your resistance is less, then electric current is more, and resistance is more, then electric current is less. Today we will study graph between V and I. Graph between V and I. Always remember, graph between V and I in straight position. V potential difference this electric current. Always remember in straight position. Yes. And between electric current R, this is in straight line, but this graph represented resistance. ओके, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है वो हम आपको बताते हैं. ठीक है, ड्रा कर लीजिए इसको. क्वेश्चन नोट करें. The values of current I, the values of current I flowing through a coil, for the corresponding values, of the potential difference V, across the coil are shown. In box. Please stop. Plot a graph between V and I at every point. Also calculate the resistance of the coil.
हम बॉक्स बना दे रहे हैं, बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लॉट दिस फिगर, आप इसको ग्राफ पेपर पर करेंगे। एक्स एक्सिस पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वाई एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रिक करंट, एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 समथिंग करेंगे, वाई एक्सिस पर 0.1 0.2 0.3, क्योंकि आपका बॉक्स में वही दिया गया है। अब इसको आप प्लॉट करेंगे तो आपका बॉक्स में है 0.05 और 0.3, तो आपका सबसे पहले यहाँ मिलेगा, फिर आपका है 0.10 1.70, जीरो पॉइंट टू जीरो 3.5 3.5 0.30 5.0, इसको आप ग्राफ के पेपर पर बनाएंगे। ठीक है, मैं एक दो कैलकुलेट कर दे रहा हूँ रेसिस्टेंस, बाकी आप अपना कर लीजिएगा। इन फर्स्ट पोजीशन, इन या फिर रेसिस्टेंस एट पॉइंट ए, रेसिस्टेंस एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक करंट आपका 0.05, पोटेंशियल डिफरेंस 0.85, then R is equal to V upon I, 0.85 upon 0.05, R is equal to 85 upon 5, 517, then R is equal to 17 ohm। ठीक है, इसी तरह से एक और मैं कर दे रहा हूँ, रेसिस्टेंस एट पॉइंट बी, रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी, बी पर आपका आई 0.10, वी 1.70, then R is equal to V upon I 1.70 upon 0.1। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आएगा, बाकी आप पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ई पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट टू कॉपी कर लो फर्स्ट। अब हम जानते हैं गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। गुड कंडक्टर क्या होता है? दोज सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी रेसिस्टेंस बहुत कम हो तो वह हमारा गुड कंडक्टर कहलाता है। रेसिस्टर की दोज सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टर वो कहलाता है जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे
एलॉयज में नाइक्रोम है, मैग्नीशियम है, कॉन्टैक्ट है, यिलिका है, ये सारी चीज़ें आपकी रेसिस्टर कहलाती है। आपने देखा होगा कि बल्ब वगैरह में इस्तेमाल होता है नाइक्रोम वगैरह का वायर, या फिर आयरन जो होता है जिससे कपड़े प्रेस करते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, वो सब रेसिस्टर होते हैं। फिर बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, इनफाइनाइट के तौर पर हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही ना हो पाए, क्योंकि I = V/R होता है। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो यानी कि नील हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। इस तरह के सब्सटेंस को हम गुड कहेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल वायर है, अगर आपने कह दिया इलेक्ट्रिकल वायर, तो इलेक्ट्रिकल वायर आपका गुड कंडक्टर कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, किसी भी चीज़ का है। और हीटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ आयरन जो मैं आपको बता चुका हूँ। रबर जो होता है ये गुड इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुँच पाता है। इसलिए अपने इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो पोल्स पर बिजली जब खराब हो जाती है तो पोल्स पर इलेक्ट्रिसिटी पर चढ़ता है तो अपने हाथों में रबर पहन करके खड़ा रहता है, और जिसकी वजह से वो अपना तार वगैरह किसी भी तार को कोई भी पकड़ सकता है, ताकि उसके बॉडी के अंदर करंट किसी तरह की फ्लोइंग नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। आइए जानते हैं कि आपका रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो डिपेंडेंस है आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि आपका कंडक्टर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, दूसरा है एक क्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दूसरा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की, वो कितना मोटा है या कितना पतला है। तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल की किस चीज़ से बना हुआ है, और चौथा है आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। हम ऐसे कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसका इग्निशन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हो, मैक्सिमम की पोजीशन हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो जानते हैं हमारा रेसिस्टेंस चार चीज़ों पे। पहला इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, resistance is directly proportional to the length of conductor, length of conductor यानी कि R proportional स्मॉल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है आपका इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि आपका है कैसे कि रेसिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section, यानी कि R proportional 1/, इक्वेशन नंबर 3। तीसरा है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि हम एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो जिसकी रेसिस्टेंस आपकी कम हो, क्योंकि रेसिस्टेंस जब कम होगा तब आपका इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो होगा। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। चौथा हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम ऐसे रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर जो मैक्सिमम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि टेम्परेचर
इग्निशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट या जो भी टेम्परेचर है वो कम हो और जैसे ही हम उसको हीट करें फौरन वो मेल्ट होना शुरू हो जाता नहीं, क्योंकि आप अगर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो आपका बल्ब वगैरह जलना बंद हो जाएगा। इसलिए हम नाइक्रोम का वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा गया है कि रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे प्योर सब्सटेंस रहेंगे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और उसकी आपकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस ऑटोमेटिक घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, 1 2 कॉपी देन फास्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हम दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे। हमने आपसे कहा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम रेसिस्टिविटी के बारे में हमें जानना है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कंबाइन करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ जो आर है वो आपका रेसिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम होती है। ए जो है वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी यूनिट हमेशा एसआई में मीटर स्क्वायर। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसकी यूनिट आपकी मीटर होती है। और रो है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर। चाहे ऐसे लिखें या फिर ऐसे, दोनों बातें एक। इसका फार्मूला भी बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 कॉपी कर लो। देखते हैं, अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस निकालना है फार्मूला आपका ये लगेगा। अगर मान लो एरिया निकालना है तो रो एल बाई आपका कैपिटल आर हो जाएगा। अगर एल निकालना है तो ए आर बाई रो हो जाएगा। और अगर मान लो रो निकालना है तो आपका हो जाएगा ए आर बाई, यहाँ जो रो है वो आपकी रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, इस चीज को ध्यान में रखिए। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या फिर कह लीजिए कंडक्टर, जो आपकी मर्जी। ठीक है, यही आपकी रेसिस्टिविटी है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, यह भी हम आपको 1 2 कॉपी देंगे। ये बुक का मैं स्कैन कर दे रहा हूँ। आप इसमें कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, उनकी रेसिस्टिविटी के बारे में दिया गया है। आप उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो अपना हमको बता दीजिएगा। जो मैंने आपको बुक में दिखाया वो अपना देख लीजिएगा। आपका कंडक्टर का भी है, सेमीकंडक्टर का भी है, इंसुलेटर का है। कंडक्टर और इंसुलेटर को जानते हैं, सेमीकंडक्टर। कभी कभी कुछ ऐसे आपको मटेरियल मिलेंगे जिसमें आपका कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। रेसिस्टिविटी जो होती है आपकी एलॉयज की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है दूसरे प्योर मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए एलॉयज का इस्तेमाल आपके आयरन वगैरह में किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट जैसे आपका आयरन वगैरह होता है तो उसमें आपके प्योर मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी कभी उसमें एलॉयज का भी इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, नाइक्रोम हैज़ वेरी हाई रेसिस्टिविटी,
नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि उसको आसानी के साथ जलाया नहीं जा सकता। ऑक्सीडेशन और बर्न इजीली इवन हाई टेम्परेचर, चाहे जितना टेम्परेचर दे लेकिन उसको आसानी के साथ जलाया नहीं जा सकता। रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इस वर्ल्ड में केवल दो ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इन बिटवीन दो ज्यादा कंडक्टर है, इंसुलेटर इनके बीच में होते हैं। इसके बाद हम निवेदन पढ़ेंगे शाम को। If any time of the doubt, then can ask me my WhatsApp number 9839324113. Okay.